Hey dear students, hello. I hope you are doing well. This is Ananya and you are watching Law Rotation. And आज we are sitting over here to discuss how you can ace your law entrance exam. Now this is something that is going on almost all the legal YouTube channels these days, because obviously the entrance exams are just around the corner, right? So you have either a month's time or something around that only, जिसमें आपको अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है एंड आपको उसको एक्सेल भी करना है, बिकॉज ओनली एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड कॉलेज, राइट? नाउ देयर आर n number of YouTube channels that have these kind of strategy plans. They have your syllabus coverage etc etc, जो कि आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. Now why am I telling you this, or why am I sitting over here, and why I want you people to please sit and listen to whatever I am saying is because over here मैं आपको कोई strategy नहीं बताने वाली हूँ, nothing at all. I am simply discussing और I will simply tell you my strategy जो थी या फिर my way of action जो था जब मैंने अपना 2011 में एंट्रेंस टैग किया था DU-LLB का. So if you don't know, I have done my LLB from Campus Law Center, Delhi University, and as you know, for the purpose of entering into any law college, you need to give an entrance exam, right? So there are different kinds of entrance exams that are over there, but abhi I am not going in detail into any of that. I just want to share you what I faced and how I did it. And it is going to be very much possible for you also to crack this exam within a time span period of even 10 to 15 days. Trust me, I am not bragging. मैं कोई झूठी बात नहीं बोल रही हूँ. This is what I have done and I am a very average student. I am putting it in front of you. When I gave this exam, I was a very average student. In fact, इतनी average कि मेरे marks जो थे graduation में वो उतने अच्छे नहीं थे, सो दैट आई कैन एक्चुअली परस्यू माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी. सो बेस्ट वे आउट नॉर्थ कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कैंपस लॉ सेंटर का बहुत अच्छा नाम है, लॉ जैसा सब्जेक्ट है. लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स गिव माई एग्जाम. फॉर्म भर दिया. अब मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड आई हैड ओनली एंड ओनली 10 और 15 डेज एज फार एज आई रिमेंबर to prepare for this exam. मेरा जैसे ही graduation का exam खत्म हुआ, from that day itself I started preparing for this law entrance test. Now I will tell you one very good thing or something that should be your mantra, which is a very cliche. अगर आप उसको उस तरीके से जज करो तो the only mantra that you have to follow is impossible, because impossible has I am possible. Right? So this is extremely very important. मैंने क्या किया था? First and the foremost thing, whenever you are giving any kind of entrance exam, not only for law or for that matter कोई भी आप entrance exam दे रहे हो या कोई भी exam दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है that you go through the syllabus. तो आप syllabus देखो and try and understand कि syllabus में कौन कौन से topics हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे. अब यू आर गिविंग अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो ऑब्वियसली दैट डजंट मीन दैट यू विल हैव साइकोलॉजी क्वेश्चंस, राइट? आई मीन वेरी स्टूपिड बात हो गई ये तो. लेकिन अगर आप लॉ वाले एग्जाम दे रहे हो तो लॉ एग्जाम में यू हैव करंट अफेयर्स ऑल्सो, यू हैव करंट जीके ऑल्सो. सो समथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लीगल न्यूज इज गोइंग टू कम ओवर देयर. बट ऐसे रैंडम स्टफ्स जो है, रैंडम न्यूज जो है, वो एग्जाम में पूछना थोड़ा सा वेग हो जाता है, जनरली पूछा भी नहीं जाता, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज गो थ्रू द सिलेबस वंस, जॉट डाउन कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं और आपको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करना है. नाउ देयर आर गोइंग टू बी मेनी स्टूडेंट्स who will say that I have a good English and I think that I will be able to answer English related questions well. There will be a few students who are at a very good habit of reading newspapers daily.
तो उनका जो लीगल अफेयर्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा, उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर में लॉयर्स हैं, तो उनको जो लीगल मैगज़िन्स हैं या फिर जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें वो बहुत अच्छे से आती होगी, तो उन्हें उसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज नन ऑफ देम। ना मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, ना मेरे घर में कोई भी लॉयर था, और ना ही आई विल से दैट माई इंग्लिश वॉज इम्पेकेबली वेरी नाइस कि मैं कुछ भी जैसे भी मर्जी कोई भी कॉम्प्रिहेंशन हो, आई नो दैट 5 on 5 मेरे मार्क्स आने ही हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। सो व्हाट आई डिड वाज स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 itself, आफ्टर ऑफ कोर्स जॉटिंग डाउन कि किस तरीके से मुझे सिलेबस देखना है, उसके बाद व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन डे इन एंड डे नाइट। कोई भी टाइम हो, कोई भी आवर हो, मैं मेट्रो में बैठी हूँ, मैं मम्मी पापा के साथ बैठी हूँ, मैं खाना खाने के लिए भी बैठी हूँ, आई हैड दिस यूनिवर्सल का बुक विद मी एंड आई यूज्ड टू डू क्वेश्चंस। नाउ द मोटिव that was behind this, or the driving factor that was behind my doing so many questions in a day was I really wanted to crack this exam, because I somehow knew that अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो मुझे पता नहीं है मेरा क्या होगा। This was the thing that was the driving factor for me. So you need to find your driving factor as well, कि क्यों दे रहे हो ये एग्जाम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, आर यू वेरी पैशनेट अबाउट द लीगल फील्ड, और यू थिंक कि लीगल फील्ड में बहुत सारा पैसा है, या यू फील दैट यू एक्चुअली वांट टू डू सम सोशल गुड टू द सोसाइटी, दैट देयरफॉर यू वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड। व्हाटएवर इट इज योर चॉइस, you are selecting your own course, you are going to give your entrance exam, forget about anybody else, forget about your parents also for that matter. Please, आप उस एज पे आ गए हो where you people are finally deciding a professional course, right? So you are entering into the adult life, so you need to take responsibility of the things that you will do in your life, right? So वो ड्राइविंग फैक्टर जो भी है वो लेके स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। नाउ देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल फ्रेट कि क्वेश्चंस करें कैसे, लीगल मैगजीन ही नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट इज टॉर्ट्स। आई नो फॉर अ नॉर्मल फैक्ट दैट क्राइम होता है, बट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क्राइम, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, सब भूल जाओ। लॉ इज सच अ सब्जेक्ट कि अगर बेसिक्स भी नहीं पता ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, लॉ आ जाएगी, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट अ वेरी कॉन्सेप्चुअली बेस्ड सब्जेक्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड अप्लाई करना है, दैट्स इट। कमिंग टू हाउ यू कैन एक्चुअली स्टडी, सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया दैट डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, 500, 1000, 2000, 5000, जितना कर सकते हो उतना करो। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देन these days you have this amazing technology in front of you, हाथ में मोबाइल फोन जो है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी या इससे बेटर फ्रेंड कोई नहीं है। आई टोल्ड यू दैट देर आर सो मेनी गुड यूट्यूब चैनल्स that actually help you out in finding or in strategizing your way of going through any exam. Please थोड़ा सा टाइम लगाइए, बहुत सारे बहुत अमेजिंग चैनल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है। बट देन अगेन देर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स जो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी पढ़ाने लग जाते हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टडी एनी लीगल सब्जेक्ट इन कंप्लीट डेप्थ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद कॉन्सेप्चुअली आप उनको किस तरीके से यूज़ कर लोगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। वंस द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू,
you will be able to excel no matter what. Coming to Delhi University law exams. Now, I feel that they are very, very simple. Hear me out. Why am I saying this? Is because Delhi University में you have good amount of seats. बहुत ज़्यादा intake होता है एक साल में. तो अगर आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से भी पढ़ाई की है for a span of even 15-20 days, trust me, there are very high probable chances कि आपका DU में हो जाएगा. कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं दोबारा बता रही हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड इट इज वेरी वेरी पॉसिबल. सो आई डोंट नो व्हाट आई हैव ब्लैबर्ड इन दीज फ्यू मिनट्स इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ भी आपको काम का लगा तो प्लीज़ आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए. एंड आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए, the comment section is open. Please put in your questions and I will try and answer as many questions as possible. Till then, please take care of yourselves. Please study and please be responsible citizens to the country of India. Bye. Take care.